752 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिवेशन में आपका स्वागत है। यह 752 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी अधिवेशन है और ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब के प्रतिनिधियों का भी अधिवेशन है। 752 मेन पर्पस है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट अधिनियम पारित हो। Constitutional validity on income work per day fiscal credit wage fundamental right. Direct link to ministry and budget fundamental right. Educational certificate per day fiscal credit wage fundamental right. There should be 3 budget system: annual budget 1 and ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employed ministry and budget. There should be 4 slab pension 18 years, 32 years, 46 years, 58 years. There should be organized self-employed ministry budget of India, Commission of India for managing self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing system. We should develop self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office as fundamental right, so that everyone gets employed, because we are 140 crore population and employment is the problem of each and every person, and we should make employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. Based on the aggregate demand is equal to aggregate supply and investment is equal to saving. Based on that, 30% of the total population is 40,000 per month above in cash earning. In that 50% is government servant and 50% is private servant. Rest means 15% people of private sector are earning above 40,000 and 15% of people are earning in government service 40,000 per month below. Rest all are earning 40,000 per month below, and in this 40,000 per month below poverty line people, illiterate, all are there. So we should develop direct ministry and budget connection and self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal rate. What we are doing, that should be considered in the constitutional validity on income work. And for this, we are working through the constitutional process of democratic truth and non-violence for understanding this and working on that. Right of pension should be fundamental right. Right of pension after 14 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing should be fundamental right. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing. There will be double salary system, of course, because organized self-employed ministry provide the work for 7 days, because it is a constitutional ministerial work based on the framework of the fiscal credit table, and certain work is given that has to be completed in assigned form in 7 days. After that they are free. So rest 23 days one can work their own, and flexibility of work is there in the 7 days also. It can be done in 2 days also, it can be done in 1, depend on the people and according to qualification, so that the work and regular income in the uniform way attached to each and every person. Money will be coming from the same process as we are doing for the annual budget, 28 state annual budget, railway budget, and 8 union territories. Same process, the money will be arranged for organized self-employed ministry budget of India, 28 state organized self-employed ministry of India, and 8 union territory organized self-employed ministry budget of India. It is not a problem. Problem is how you are attached to it. If you are attached, then it will be solved. इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर कार्य में लगी हुई है, और सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क को आपके सामने संवैधानिक मान्यता आय काम पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लाए, इसका आप समर्थन करें। साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया, जिसके तहत 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री प्राप्त करके व्यक्ति 40,000 से ऊपर चला जाएगा और उसी के हिसाब से पेंशन सेट होगा।
प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड 2 नंबर बनाए गए हैं यूनिफॉर्म रूप में फिजिकल क्रेडिट टेबल को लेकर, और साथ साथ सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग एंड गेटिंग फिजिकल क्रेडिट सैलरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, ताकि हर एक नागरिक जो वोट देना चाहता है वह बजट से और मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, उसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है। मनी का अरेंजमेंट वैसे ही जैसे इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स लेकर हम लोग एनुअल बजट रेलवे बजट का करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसका भी उसी प्रकार से फेडरलिज्म के हिसाब से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट के हिसाब से इसको उसी प्रकार से पैसे का प्रबंध। ज़रूरत है आप लोगों के सहयोग की और समझने के समर्थन की। इसके बाद यूनियन एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया OSMBI, जिसके तहत 1360 स्क्वायर फीट का ज़मीन खेती करने के लिए देते हैं साल भर में, तो 1500 रुपये उस पर रेंट, और धीरे धीरे बढ़ेगा ही, और साल भर पर फिर रिन्यू कर लिए, नहीं तो फिर अपना वापस ले लिए खेती कर लिए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए ट्रूथ ऑन लिटम्स किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए पब्लिश किया गया है। 401 रुपये की किताब है, इसके 6 खंड हैं, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 6 राष्ट्रपति भवन हिंदू के हैं और 6 राष्ट्रपति भवन अल्पसंख्यक धन के। पहला राष्ट्रपति भवन त्रिशूल मांग में सिंदूर जोशी और पार्वती मंदिर का राष्ट्रपति भवन है। दूसरा राष्ट्रपति भवन बैकुंठ राष्ट्रपति जो कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर का राष्ट्रपति। तीसरा राष्ट्रपति ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, जिसमें ISBN नंबर और एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ISBN नंबर ट्रूथ ऑन लिटम्स का है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/3 रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। चौथा राष्ट्रपति भवन है आदि शक्ति जगदम्बा, जिसके तहत सभी का आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर का है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वयं वर्ष की भवन होती हैं, जिसमें सभी प्रकार के देवी देवता हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हिंदू गवर्नमेंट इजरी, जिसमें सभी तरह के लॉ हैं 15 अगस्त 1947 से, और फिर 31 अगस्त 2001 के बाद से जितने भी लॉ बनाए गए सब हैं। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन और 6 अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भवन हैं, जो कि अल्पसंख्यक मंदिरों के हिसाब से बनाए गए। अब ट्रूथ ऑन लिटम्स के 6 खंड हैं और 6 खंड की कीमत 401 रुपये है। इंग्लिश में लिखा हुआ किताब है। प्रत्येक व्यवस्थित स्वरोजगार को इसको अपने घर पर रखना चाहिए, और इसको मंगाने का तरीका है पार्सल के ज़रिए। मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर या OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 पर कॉल करके या मैसेज करके ये आप तक पहुंच जाएगा, पार्सल के ज़रिए आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो है सो यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट सर्च में टाइप करने पर सेशन 1 to 100 इंग्लिश में किया गया है, 101 to 200 हिंदी में है, 201 to 205 मैथिली में है, 226 to 300 इंग्लिश में है, 301 to 400 हिंदी में है, 401 to 500 मैथिली में है, 501 to 700 इंग्लिश में है, 701 to 900 हिंदी में है। 752 सेशन है ये, 752 सेशन है ये। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल साल में 4 बार 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई, 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर किया जाता है। इसके तहत 6 पेयर ऑफ मूर्ति शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा प्रोटेक्शन ईच यूनाइटेड वर्ष के और उनके बेटा बेटी, जिसको हम लोग डेप्टी राष्ट्रपति भवन मंदिर दस्तावेज कहते हैं, गणेश कवि कार्तिक हनुमान जी और भी देवी देवता के फोटो जितने भी हैं, उन सबके मूर्तियाँ बनाकर प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि श्रृंगार करके ये 10 दिन पूजा की जाती है रोज की विधि से, और फिर 10वां दिन विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन करने के बाद फिर से रिन्यूअल अपना काम चलते रहता है। इसमें सभी मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं और इनके कृपा से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम आया, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी कोई भी प्रॉब्लम आया तो इस सॉर्ट आउट इससे हो जाता है। यह अमितेश्वरवाद का इसमें विश्वास है और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ट्विटर पर एड्रेस है Twitter @अमित कुम 68022607 और फिर उस पर एड्रेस है ब्लॉग पर जहाँ amitkumar77.blogspot.com। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आरती प्रत्येक दिन होती है। हेड ऑफिस अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार। इंडिया पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर
6397360717 ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। और कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन 1 से 6 कहा जाता है। पहला राष्ट्रपति भवन हुआ शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती पुष्पांजलि आरती प्राण प्रतिष्ठा श्रृंगार ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण आयुष पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक सोमवार शुद्ध भगवान भगवती 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट हिस्ट्री टाइम 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन है, उनका भी उसी तरह से आरती और अल्पसंख्यक धर्म के राष्ट्रीय भवन। इसके बाद फिर जो है इसका ध्वज भी है। ध्वज उजला कपड़ा है। उजला कपड़ा में 12 चिन्ह है, जिसमें से पहला चिन्ह त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती वेलफेयर पावर का दृष्टिगोचर है। दूसरा चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण दामिका विलास का दृष्टिगोचर है। तीसरा कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन का दृष्टिगोचर है। चौथा त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। और किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट हिस्ट्री का दृष्टिगोचर है। इसके अलावा 12 और चिन्ह हैं, 6 और चिन्ह हैं जो कि माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन के दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको जो है समझकर लाइक साथ साथ पॉजिटिव कमेंट और साथ साथ जो है सो एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज जरूर लगवाएं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज रोजगारी के हर समस्या को दूर कर देता है, क्योंकि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज प्रशासन में जुड़ना चाहिए और इसको फिजिकल क्रेडिट वेज के तहत लिया गया है। इमीडिएटली पैसा नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो व्यवस्था बना ली जाती है, जिसके तहत हर एक महीना पैसा आने लगता है। इसके तहत 4 बार पेंशन आ जाते हैं 18, 32, 46, 58, क्योंकि 14 साल तक 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने पर पेंशन मिलना अनिवार्य हो जाता है। ये व्यवस्थित स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा के ज़रिए ये पॉसिबल है और इस चीज़ के लिए आपको ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब खरीदें और इसको जो है पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद समर्थन दें। समर्थन देने से और इसको बोलने से आपके इर्द गिर्द सभी इसके समर्थक बनते चले जाते हैं, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऐसी चीज़ है जिस पर आज तक जो है पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज नहीं लगाया गया है। नॉलेज की आड़ में इसको छोड़ दिया गया है। जैसे लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक होते हैं, दोनों के बगैर हमारी जो ताकत है वो एक साथ नहीं दिखती है। इसी प्रकार से जो नॉलेज है, जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं और जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, दोनों राइट लेफ्ट हैंड। जैसे आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए संवैधानिक तौर पर, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग इंडिया में कर रहे हैं उसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत उसको भी आना चाहिए। जब हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करते हैं पर डे फिजिकल क्रेडिट, तो संवैधानिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज भी लग जाता है, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट में हमारा क्लास 1 का भी रिपोर्ट काटा जाता है। जो जितना हम लोगों के पास भगवान ने साधन दे रखे उतना हम पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद जो नौकरी के लिए जो भटकाव होती है और इधर उधर भटकते हैं साल 2 साल 3 साल, उसके बावजूद भी स्ट्रॉन्ग दस्तावेज़ हमारे पास नहीं रहता है। प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड इसी स्ट्रॉन्ग दस्तावेज़ को प्रमोट करता है संवैधानिक तौर पर, जिसके ज़रिए एक बार इससे जुड़ गए तो पेंशन, ग्रेजुटी, प्रॉविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट वो सारे उस नंबर में जमा हो जाते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं काम कर रहे हैं तो वो उस नंबर को देकर उसी में पैसे जमा कर सकते। प्राइवेट सेक्टर के जॉब को सभी को पता है 2 साल 3 साल 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा कंप्लीट करते हैं अपने करियर को। कुछ लोग बिल्कुल
जॉब की प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम सब मिलकर व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय के अधिनियम को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में अनुदेश प्रधानमंत्री मंत्रालय लेबर पार्टी एजेंडा इस पर किसान के साथ पारित कराएं और व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय